let's discuss on the exercise 9.5. Up to the 9.4 we have completed, and the 9.5 exercise, it has its basic fundamental, but we will try to solve this exercise with the previous one method, and if we get any special case then I will explain with the example and the basic foundation of this one also. So let's start from the question number first of the exercise 9.5. What is the question? I is equals to integrate the following, and our first question is x square plus 2x plus 10 into dx. This question is given. Now check the given function is a proper rational function or not. हाँ ये भी है, देखो ये px है, कांस्टेंट टर्म वैसे भी इसमें वेरिएबल यूं कह सकते हैं x to the power नॉट, तो अवेलेबल है. And here also the degree of this one is 0 and the degree of this one is 2, so it is the proper rational function. अब उसको अपन a अपॉन ऐसे करके कर सकते हैं क्या, कैन वी डू और नॉट. अब हमें ये चेक करना है क्या इसका फैक्टर हो. देखो इसके यदि फैक्टर हो जाएंगे ना तो अपन वो पहले वाला मेथड अप्लाई कर देंगे, और यदि नहीं होंगे तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे. Then find two numbers whose product is 10 and sum of these both number is 2. ऐसा कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इंटीजर्स नहीं है. रियल नंबर में तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसे कोई दो नंबर आपके माइंड में नहीं आएंगे, तो अपन फिर क्या करें, अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. यदि डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन नहीं हो पाए, सॉरी फैक्टर्स ना हो, तो उस टाइम पे आप उसको ऐसे स्प्लिट करें कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई हो जाए. सो हाउ विल वी डू, ध्यान से देखना. i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, इतना ही लिखे बस. एंड नाउ x का जो कोफिशिएंट है 2, इसका हाफ, एंड द स्क्वायर ऑफ this will be 1 square, add and subtract also. This will cancel and then 10 is remaining right here. I think आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं. स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट x प्लस करना है एंड माइनस करना है, बस यही है. एंड फ्रॉम हियर I will become 1 upon, and this is the formula for the perfect number. X from here, symbol from here, and 1 from here, and then square. ये मेथड आप 10th में काफी किए हैं. And minus 1 plus 10 is 9 or 3 square. I hope that you are understanding. dx. अब देखो इसको अपन यूं बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये आइडेंटिटी बनी है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. which is equals to 1 upon a tan inverse x upon a. बात समझ में आ गई. तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं I is equals to 1 upon a is 3, tan inverse x is x plus 1 upon a is 3 प्लस c, और इसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड करना है. इसका डिफरेंशिएशन वैसे 1 आएगा, तो आपका आंसर यही हो गया. ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज I is equals to integration of 2x
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू dx। पहले तो ये चेक करो क्या पॉसिबल है क्या। मल्टीप्लाई करें 2 एंड डिफरेंस इज 1, पॉसिबल है। देन I इज इक्वल्स टू, इसको इरेज कर देता हूं, I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इंटू dx। ये पीछे वाला मेथड काम में ले रहा हूं। I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x इज कॉमन, x plus 1 is the remaining value and minus 1 is common, x plus 1 into dx, or we can say that I is equals to x plus 1 and 2x minus 1 into dx। अब इधर कर रहा हूं, इसको मान लें आप, लेट 1 अपॉन 2x minus 1 x plus 1 is equals to a upon 2x minus 1 plus b upon x plus 1। Now compare the both side after taking LCM। 1 is equals to a into x plus 1 and plus b into 2x minus 1। 1 is equals to a कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया a and here 2b, and from this side a and minus b, so a plus 2b is 0 because the term of x is not available, then the coefficient will become 0 and a minus b is equals to 1। सब्ट्रैक्ट कर दे, कैंसिल, 2b plus b is 3b is equals to minus 1, minus 1, and b is equals to minus 1 upon 3। आपके पास b की वैल्यू आ गई minus 1 upon 3, and second now apply the value of here a plus 1 upon 3 is equals to 1। देखिए minus 1 upon 3 minus minus plus, a is equals to 2 upon 3 आएगा क्या, या 2 upon 3, एक वैल्यू आ गई। देन I इज इक्वल्स टू, ए आपके पास है 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx प्लस, बट b इज माइनस, देन माइनस b इज 1 अपॉन 3, माइनस मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, 1 अपॉन x प्लस 1 dx। Is this clear? Then I is equals to 2 upon 3 log 2x minus 1 upon इसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस log 1 upon 3 है पीछे की साइड x plus 1, 2 कैंसिल बाई 2। अब इसका जो आंसर आएगा तो वो आपके पास आएगा 1 अपॉन 3 कॉमन लिया, क्या बचा, log m माइनस log m अपॉन m प्लस c में लगाया क्या, प्लस c, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी मेथड, इसी क्वेश्चन को अपन किसी दूसरे मेथड से करते हैं, जो इस एक्सरसाइज में चल रहा है उस हिसाब से करें तो क्या होगा, मान लो कि इसका फैक्टर आपसे नहीं हो पाया, देन I इज इक्वल टू यूज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x। What is the coefficient of x is 1, half of this is 1 upon 2, 1 upon 2 and किया, and minus 1 upon 2 whole square minus 1 into dx, and I is equals to dx
अपॉन, यहां से लेके ये तो बना 2x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक अंक घटाएंगे, ये 2 कॉमन ले लो तो 1/2 और इजी बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2 इंटू dx इज इक्वल्स टू, ना लोगे तो भी चलेगा, 1/x स्क्वायर प्लस x/2 is what is the coefficient of x, which is 1/2, and half of this is 1/4, and square of this will be this one, 1/4 whole square minus 1/4 whole square minus half, ये स्टेटमेंट मिला dx, and then half 1/x plus 1/4 whole square from here to here, और इसका कितना आएगा माइनस 1/16 माइनस हाफ, एलसीएम इज 16 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9/16 और माइनस 3/4 होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? अब देखो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस, आइडेंटिटी बनी आपके पास, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। बात समझ में आ गई यहां तक? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a x प्लस a plus c. Now apply the weightage. I will become 1/2. अब देखो 1/2 ये तो पहले से into 1/2a, 1/2a is 3/4, 1/2a log of x is this, x plus 1/4 minus a is 3/4, x plus 1/4 again because x is x plus 1/4 and plus a 3/4 plus c. क्लियर है ना? 2 टाइम्स और ये 2 इससे गया 1/3 log एलसीएम लेंगे 4 से 4 कैंसिल, 4x प्लस 1 4x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 4 प्लस, बात समझ में आई यहां तक? 1/3 log ये होगा -2 4x -2 upon 4x plus 4 plus c, and from here 1/3 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, log x minus 2 and 2x plus 2 plus c, so it is the answer। अब ये मैच नहीं हो रहा, चलो मैच करते हैं, ये 2 कॉमन ले लो यहां से, 1/3 log x minus 2 अपॉन 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2। क्लियर है यहां तक? इसको स्प्लिट करें तो अपन लिख सकते हैं 1/3 log x माइनस 2 माइनस log 2x प्लस 2 एंड देन प्लस। बात समझ में आ गई यहां तक? Then now next step will be 1/3 log of x minus 2 minus log x plus 2 log m into n will be log m plus n, log m plus log n, लेकिन ये बाहर माइनस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा n प्लस c। ठीक है,
ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मर्ज होके आपको कांस्टेंट ही दे देंगे प्लस सी, और इसको वापस 1/3 log x अपॉन 2 log m माइनस log n विल बी log m अपॉन n। ये सॉरी यहाँ पे क्या था, ये 2x माइनस 1 था ना, ये गलती किया मैंने, 2x माइनस 1, 2 कॉमन लिया था। तो इससे ये बन जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई भी मेथड अप्लाई करें, पीछे वाला नया वाला जो भी है, आंसर वही आना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। And this question is one upon 9x square minus 12x plus 8. dx. This factor are available or not? 9 8s are 72. Now find two numbers such a way that whose product is 72 and sum of these both number is minus 12. है क्या ऐसे कुछ 6 6 are 36? नहीं, ऐसे कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। तो फिर अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो पहले तो 9 कॉमन ले लो, 1/9, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 12x अपॉन 9 प्लस 8 अपॉन 9 dx इज इक्वल्स टू, ये i के इक्वल मान लेंगे अपन, 1/9 x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 8/9 dx। अप्लाई द परफेक्ट स्क्वायर मेथड हियर। इसका हाफ is 2/3 and then square of this is this, तो ये 2/3 का स्क्वायर ऐड करना है, and the step will become 1/9 1/x square minus 4/3x plus 2/3 whole square minus 2/3 whole square plus 8/9 dx, then 1/9 x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 8/9 माइनस 4/9 इज 4/9, एंड दिस कैन बी राइट 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर, एंड नाउ आइडेंटिटी विल बिकम 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर is equals to 1/a tan inverse x upon a plus c. Then here I will become 1/a. a is 2/3. देखो 1/9 तो पहले है, 1/9 into 1/2/3. Got it? And tan inverse x is x minus 2/3 upon a is 2/3 plus c। समझ में आ रही बात यहां तक? 3 3s I is equals to 1/3 tan inverse of 3x minus 2/2 plus c। या तो आप इतना छोड़ दें, इतना रखेंगे, वो तो क्या करेंगे, लोग होता तो अपन इसको हटा के इसमें मर्ज करवा लेते, बट इन दिस केस we cannot do anything else. So friends, this is the answer of the question number 3rd. Now next question 4th. तो जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसके बारे में एनालिसिस करो, is their factors are available or not. If they are available, then use a partially factor method, and if these are not available, then perfect square method. अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। which is 1/i is equals to 3 plus 2x minus
x स्क्वायर dx। फर्स्ट टारगेट इसको पॉजिटिव बना लो, देन I इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x minus 3 dx. Now find two number, the product is 3 and difference of this number is minus 2. So these numbers are minus 3 and plus 1. तो अवेलेबल है, तो a प्लस b वाला केस काम है या परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ज्यादा इजी रहता है तो मैं उसी को प्रायोरिटी दूंगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू dx। बात समझ में आ गई होगी आपके यहां तक। देन I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 4 माइनस ऑल्सो आउटसाइड ऑफ इट एंड देन dx। And for it we can say that I is equals to, इसको 2 स्क्वायर लिख दो, पॉजिटिव होगा तो पहले लिख दिया माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। एंड द आइडेंटिटी इज, आइडेंटिटी क्या बनी? आइडेंटिटी बनी आपके पास, देखो there will be little problem during the question number 4th. The problem was the technical problem, and most of the part I have solved, and in the remaining one part you will apply the identity of a square minus x square dx, which will be the 1 upon 2a log x plus, sorry, a plus x upon a minus x plus c, and apply the value of a and x. In this case you will get your answer. Now the question number 5th. Our 5th question is I is equals to x upon x to the power 4 plus x square plus 1 dx। देखो यदि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन नहीं है, so first of all we will change this into the quadratic formation. So we will write this formation into x square to the power 2 plus x square and plus 1। चलो ऐसे कर लेते हैं, x square ओके into dx। If we can consider x square as t, then the differentiation of this will be x in the formation of x. So from here substitute the value of x square, let x square is t, then 2x is equals 2x dx is equals to dt, then x dx will become dt upon 2। Here I will become dt upon 2 at the place of x dx upon t square plus t plus 1। Now same thing, product of two number will be 1 and sum of two number is 1. It is not possible for the integers. That's why I am going to use the perfect square method for the denominator, and this will become dt upon t square plus t plus half of t। आप समझ लेना है क्या लिखा मैंने, प्लस 1। इसीलिए समझ में आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 and half of this is 1 upon 2 and then square। I is equals to 1 upon 2 dt t plus half होल स्क्वायर, और ये कितना बचेगा हाफ, ये बचेगा 1 upon 4, 1 minus 1 upon 4, 3 upon 4। So for this we can say that 3 upon 2 whole square and positive, और ये आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, then I is equals to 1 upon 2 into 1 upon a tan inverse x upon a, x is t plus half upon root 3 upon plus c। Cancel by this,
I is equals to 1 upon root 3 tan inverse 2t plus 1 upon root 3 plus c, and in the last 1 upon root 3 tan inverse 2x square because t is x square upon root 3 plus c. तो ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5th का. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6th. Question number 6 is I is equals to cos x upon sin square x plus sin x plus 4 sin x plus 5 dx integration. If we will assume sin x is equals to t, then it will be cos x dx is equals to dt. Then sin x is equals to t. Cos x dx is equals to dt. Apply here. I will become dt upon t square plus 4t plus 5. या तो आप a b वाली आइडेंटिटी लग सकती है, मल्टीप्लाई करें तो नहीं लगेगी, ऐड करने पे 4 नहीं आ सकता. तो वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड I इज इक्वल्स टू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4t प्लस हाफ ऑफ दिस इज 2 एंड देन स्क्वायर इज 4. तो 2 स्क्वायर लिखना है अपन को यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर, या फिर इसको तो चाहे 4 लिख दो क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा इसके साथ में 5. I will become dt upon t plus 2 whole square plus 1 स्क्वायर. बात समझ में आ गई. और ये बना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. then I is equals to 1 upon a. 1 upon a is 1 tan inverse x upon a t plus 2 upon 1 plus c. I is equals to tan inverse t plus 2 plus c, and I is equals to tan inverse sin x because t is sin x plus 2 plus c. तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The given question is x minus 3 upon x square plus 2x minus 4 dx. How will we do? Is the factor available or not? First of all check this one. Factor available है क्या? फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो 4, डिफरेंस 2. या फैक्टर्स आर अवेलेबल. सो I इज इक्वल्स टू x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस नहीं, डिफरेंस 2 नहीं आ सकता तो फैक्टर अवेलेबल नहीं है. देन स्प्लिट दिस वन, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx माइनस 3 बाहर ले रहा हूं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx. चलो यहां तक तो बात क्लियर हुई. नेक्स्ट क्या करें? जितने भी अपने पास फॉर्मूले वो 1 अपॉन में है तो इसमें तो अप्लाई हो जाएगा. इसमें कैसे होगा? हाउ विल वी डू इन द लेफ्ट पार्ट? देखो इसको, इसमें भी वही मेथड तो वही लगा दो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड. देन I इज इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, या फिर ओके
1 square because half of this is 1 and square minus 1 square minus 4 dx minus 3 1 upon x square plus 2x Question number 7, which is x minus 3 x square plus 2x minus 4 into dx। देखो जितने भी अपने पास फॉर्मूलाज है डायरेक्ट वो 1 अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट इसको स्प्लिट करें, ऐसे करके कर सकते हैं। वी कैन से लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एंड माइनस 3 कॉमन लिया dx and 1 upon x square plus 2x minus 4. For this we can apply, but for this we will use the partially fraction method. अब पार्शियली फ्रैक्शन मेथड में इसके फैक्टर होने कंपलसरी थे, अब इसके फैक्टर ही नहीं हो पा रहे। फैक्टर होते तो अपन सीधा यही अप्लाई कर देते फिर तो। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो चेक करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, द डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस 2, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब देखो हम ऊपर ये वैल्यू लेके आएंगे, कैसे भी करके ऊपर इसको ये बना दो, तो x माइनस 3 को अपन ये लिख सकते हैं 2x लिखा देन 2 माइनस 3, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी नीड प्लस 2, देन 2x प्लस 2 एक काम करो यहां पे अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आया, लेकिन यार जैसे ये 2 बाहर आएगा 1/2 करें इसको तो ये 4 हो जाएगा। तो एक काम करो यहाँ पे 1 ले लो, 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3, और यहां से 2 कॉमन ले लो 1/2, देन 2x प्लस 2 एंड माइनस 4, ये स्टेटमेंट बनेगा आपके पास और ये डिफरेंशिएशन अवेलेबल है अपने पास। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखो i इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये आना चाहिए, सिंप्लीफाई करें तो x माइनस प्लस 1 माइनस 4 देन x माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो अपन ये स्टेटमेंट यहां अप्लाई करते हैं, 1/2 2x माइनस 2। क्लियर, या फिर ये समझ नहीं आया तो वापस एक्सप्लेन करता हूं। हमें ये तो चाहिए 2x प्लस 2, ओके, बट x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं था तो ये कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया x प्लस 1, हमें माइनस 3 चाहिए तो माइनस 4 अप्लाई करो, ऐसे समझ के कर लेना। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम, ये प्लस होना चाहिए था यहाँ पे, एंड माइनस 4, सही है ना, अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। i इज इक्वल्स टू हाफ बाहर लिया 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एंड माइनस सेपरेट कर रहा हूं, माइनस 4 बाहर लिया
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx। अब ये तो प्रीवियस पीछे वाले जो मेथड्स किए उससे हो जाएगा। और ये इसका डिफरेंस, ये एक फंक्शन बना आपके पास f डेस x dx, और जिसको अपन लिख सकते हैं log ऑफ f(x). तो इसका क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एंड माइनस 4, इसका जो भी आंसर है वो आप सिंप्लीफाई करें एंड देन प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो इट्स इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर and the remaining part we will solve in the next video. So thanks for watching this video and thanks again.